हरे कृष्ण प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबको स्क्रीन विजिबल है? जी। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 श्लोक संख्या 3। सभी श्लोक रिपीट करने का ट्राई करिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान वाचा अक्षरं ब्रह्म परमं अक्षरं ब्रह्मा परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते स्वभावोऽध्यात्म वाच्यते उच्यते। भूतभाव उद्भवकरो भूत भावो उद्भव करो करो विसर्गः कर्म संज्ञितः विसर्गः विसर्गः कर्म कर्मसंज्ञितः। संज्ञितः। श्री भगवान उवाच श्री श्रीभगवानुवाच भगवान वाचा अक्षरं ब्रह्म परमं अक्षरं ब्रह्म परमं परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते स्वभावो अध्यात्म स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। उच्यते। भूतभावो उद्भवकरो भूत भावो भवकरो भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः विसर्गः विसर्गः कर्म कर्मसन्निधः। संज्ञितः। श्री भगवान उवाच श्री भगवान श्रीभगवानुवाच वाचा अक्षरं ब्रह्म परमं अक्षरं अक्षरं ब्रह्म ब्रह्म परमं परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवकरो भूत भावो भूतभावोद्भवकरो भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः विसर्गः विसर्गः कर्म कर्मसन्निधः। संज्ञितः। हरे कृष्णा। प्लीज़ ट्रांसलेशन पढ़िए इंग्लिश में। जी प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। The Supreme Personality of Godhead said, the indestructible, transcendental living entity is called Brahman, and his eternal nature is called Adhyatma, the self. Action pertaining to the development of the material bodies of the living entities is called karma or fruitive activities. Purport: Brahma is indestructible and eternally existing, and its constitution is not changed at any time. But beyond Brahman, there is a Parabrahma. Brahman refers to the living entity, and Parabrahman refers to the Supreme Personality of Godhead. The constitutional position of the living entity is different from the position he takes in the material world. In material consciousness, his nature is to try to be the lord of matter. But in spiritual consciousness, Krishna consciousness, his position is to serve the Supreme. When the living entity is in material consciousness, he has to take on various bodies in the material world. This is called karma, or varied creation by the force of material consciousness. In Vedic literature, the living entity is called Jivatma and Brahman, but he is never called Parabrahman. The living entity, Jivatma, takes different positions. Sometimes he merges into the dark material nature and identifies himself with matter, and sometimes he identifies himself with the superior spiritual nature. Therefore, he is called the Supreme Lord's marginal energy.
According to his identification with material or spiritual nature, he receives a material or spiritual body. In material nature, he may take a body from any of the 84 lakh species of life, but in spiritual nature, he has only one body. In material nature, he is manifested sometimes as a man, demigod, animal, beast, bird, etc., according to his karma. To attain material heavenly planets and enjoy their facilities, he sometimes performs sacrifices, yagna, but when his merit is exhausted, he returns to earth again in the form of a man. This process is called karma. The Chandogya Upanishad describes the Vedic sacrificial process. On the sacrificial altar, 5 kinds of offerings are made into 5 kinds of fire. The 5 kinds of fire are conceived of as the heavenly planets, clouds, and the earth, man and women. And the 5 kinds of sacrificial offerings are faith, the enjoyer on the moon, rain, grains, and semen. In the process of sacrifice, the living entity makes specific sacrifices to attain specific heavenly planets and consequently reaches them. When the merit of sacrifice exhausted, the living entity descends to earth in the form of rain, then takes on the form of grains, and the grains are eaten by men and transformed into semen, which impregnates a woman, and thus the living entity once again becomes a man. Actually comes and goes on the material path. The Krishna conscious person, however, avoids such sacrifices. He takes directly to Krishna consciousness and thereby prepares himself to return to Godhead. Impersonalist commentators on the Bhagavad Gita unreasonably assumes that Brahman takes the form of Jeev in the material path. But in this verse, chapter 15, verse 7 of the Gita, but in this verse, the Lord also speaks the fragment of God, the living entity, God the Supreme Lord. Neither the living entity nor the Supreme Lord are It is important to remember that in Vedic literature, Brahman, the living entity, is distinguished from Parabrahma, the Supreme Lord. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय श्री प्रभुपाद के जय हरे हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए सेम श्लोक, अध्याय 8, श्लोक संख्या 3। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि नित्य है और उसका विधान कभी भी नहीं बदलता। हरे किंतु कृष्णा, ब्रह्म से भी परे आपका आवाज़ बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। प्लीज़ कहीं ओपन स्पेस में जाके आप अगर बोलेंगे तो और अच्छा होगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी अभी आवाज हरे कृष्णा, आ रही है आपकी आवाज़? जी अभी भी ब्रेक हो रही है? नहीं, ब्रेक नहीं हो रही है। जी हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और इसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से
संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। तात्पर्य: ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परब्रह्म होते हैं। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ है भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसका स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है, उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। ये भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक वैद परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियों के ग्रहण करते हैं। कभी वो हरे अपना कृष्णा। स्वरूप मान लेता है और आपकी कभी वो आवाज़ फिर से ब्रेक हो रही है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो फिर कोई और रीड कर ले तो शायद सेकंड पैराग्राफ से। जी कोई और रीड कर सकता है प्लीज़? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हमें तो आ रही सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परम ब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह पराध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान। भौतिक प्रकृति में वो 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वो अपने कर्म अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, कभी पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। शांतियोग उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता है और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावना में ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्मा जीव का रूप धारण करता है, और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्मा जीव का रूप धारण करता है गहा नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्मा जीवात्मा को परम ब्रह्मा परमेश्वर से पृथक माना जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी प्रभु जी, क्लियर है। तो इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर मिलता है। तो अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा था, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम
किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अधि तो यहाँ पे भगवान ने आंसर देना शुरू किया है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्मम उच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञित। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो समझना है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक मटेरियल लेवल पे होता है, एक स्पिरिचुअल लेवल पे होता है। एक भौतिक कर्म होता है, एक आध्यात्मिक कर्म होता है। भौतिक कर्म से हमारी बॉडी चेंज होती है और उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने 6 प्रकार के चेंज बताए हैं शरीर में, 6 प्रकार के बदलाव आता है। शरीर जन्म लेता है, फिर कुछ टाइम बाद उसका विस्तार होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो स्थायी बनता है, फिर उसके कुछ परिणाम होते हैं, मतलब कुछ उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो मतलब शरीर से और शरीर जन्म लेते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद वो शरीर धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है और लास्ट में वो शरीर ख़त्म हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के चेंज होते हैं, 6 प्रकार के बदलाव होते हैं शरीर में, और ये इसलिए होते हैं क्योंकि शरीर को भोगने का प्रयास हो रहा है, शरीर को एंजॉय करने का प्रयास चल रहा है। इसी की वजह से उसमें विकार आते हैं, और विकार आते हैं इसीलिए उसमें ग्रोथ होती है, फिर उसमें कुछ बदलाव आते हैं, फिर उसके कुछ बाई प्रोडक्ट होते हैं, मतलब शरीर एक शरीर से दूसरा शरीर बनता है, जैसे यहाँ प्रोसेस बताया हुआ है पूरा। और फिर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और फिर धीरे धीरे शरीर ख़त्म हो जाता है। तो यही प्रोसेस जो है भगवत गीता में शुरुआत में हमने देखा है। जो भगवत गीता की जो कलर प्लेट्स थी उसमें एक फ़ोटो हमने देखी है जिसमें माँ के पेट से बच्चा बाहर निकलता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो यंग होता है, जवान होता है, फिर वो धीरे धीरे बूढ़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ चला जाता है। पर उस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा वही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आत्मा अभी माया के अंडर आ चुकी है और अभी शरीर को भोगने का प्रयास हो रहा है। तो ये हमारा फॉल्स ईगो है, या हमारा एक तरह से ऑल्टर ईगो है, मतलब अंग्रेज़ी में बोलते हैं ऑल्टर ईगो, फॉल्स ईगो। मतलब कि एक्चुअली अभी हम जो शरीर में हैं और हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो हमारी रियल पोजीशन नहीं है, वो हमारी असली स्थिति नहीं है। वो एक तरह से एक इल्यूजन है, एक तरह से एक भ्रम है, एक सपने की तरह है। तो आप किसी भी 70 या 80 साल के बूढ़े से आप पूछो कि आपकी लाइफ कैसे गुजर गई, आपको पता है? तो वो कहेगा नहीं, टाइम तो बहुत जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला कब मैं बड़ा हो गया, कब शादी हो गई, कब बच्चे हो गए, और कब बुढ़ापा आ गया, और कब मेरे बाल सफ़ेद हो गए, ये तो पता ही नहीं चला। तो ऐसा लगता है कि ये तो एक सपने की तरह लाइफ गुजर गई, और उसमें इतनी सारी इवेंट्स हो गई और इतनी सारी घटनाएं भी हो गई, बट ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, मतलब अब तक इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, या फिर अभी भी बहुत सारी इच्छाएं बाकी है। तो इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है अकबर और बीरबल की। तो एक बार अकबर के महल में, अकबर के कोर्ट में बीरबल ये बता रहे थे कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तभी भी उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती है, और तभी भी उसके मन में वासना होती है, काम वासना होती है। तो ये जब अकबर ने ये बात सुनी, और अकबर ने फिर बीरबल से पूछा कि मैं तो इस बात को नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता कि बुढ़ापे में भी व्यक्ति के मन में ऐसी कोई इच्छाएं हो, क्योंकि बुढ़ापे में तो व्यक्ति सोचता है कि अब संन्यास ले लिया जाए या फिर सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहिए। तो अकबर ने कहा कि नहीं, मेरे पास इसका सबूत है, मेरे पास इसका प्रूफ है कि बुढ़ापे में भी व्यक्ति के मन में भौतिक इच्छाएं होती है, सांसारिक इच्छाएं होती है, और उसका शरीर तो अभी बेकार हो गया है, बट फिर भी
उसके मन में से वो इच्छाएं ख़त्म नहीं हुई है। तो फिर अकबर ने पूछा उनसे कि क्या सबूत है तुम्हारे पास, मैं देखना चाहूँगा। तो बीरबल उनको एक बूढ़े व्यक्ति के घर में ले गए और अकबर ने कहा कि आप साथ में अपनी यंग जो आपकी लड़की है उसको भी ले चलिए। तो अकबर की एक यंग बेटी थी जो बहुत दिखने में सुंदर थी, तो अकबर ने उसको भी साथ में ले चलने को कहा। तो अकबर और बीरबल के साथ अकबर की बेटी भी साथ में आ गई और उस बूढ़े व्यक्ति के घर में वो गए और वो व्यक्ति एकदम बूढ़ा हो चुका था, उसका शरीर पूरी तरह ख़त्म हो गया था और वो बिस्तर पे लेटा हुआ था और उसका मृत्यु का समय ही आने वाला था नज़दीक, मतलब वो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। तो उस समय अकबर आए और बीरबल ने उनको इंट्रोड्यूस किया उस व्यक्ति से, और उस व्यक्ति से बीरबल ने कहा कि ये हमारे राज्य के राजा हैं अकबर और ये उनकी बेटी है। और फिर तो अकबर और उनकी बेटी को इंट्रोड्यूस किया बीरबल ने। तो सब लोग देख के ये शॉक हो गए कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो कंटिन्यूस अकबर की बेटी की तरफ देख रहा था और बुरी नज़र से देख रहा था। तो वो क्लियर समझ में आ रहा था कि वो बूढ़ा हो चुका है, उसका शरीर पूरा ख़त्म हो चुका है, फिर भी वो बुरी नज़र से अकबर की बेटी को देख रहा है। तो उसको भी शर्म आई और वो भी अपने पिताजी के पीछे चली गई ताकि वो बूढ़ा उसको देख ना सके। तो अकबर को भी बहुत ऑकवर्ड लगा और फिर अकबर अपनी बेटी को लेके वहाँ से चले गए और फिर उन्होंने बीरबल की बात को मान लिया कि हाँ तुम सही कहते हो कि व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है और मरने वाला है, अपने मृत्यु के एकदम निकट है, फिर भी उसके मन में ऐसे गलत विचार होते हैं और वो इच्छाएं ख़त्म नहीं होती है। मन के अंदर जो बुरी वासनाएं होती है, बुरे विचार होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि हम अभी अपनी असली पोजीशन में नहीं हैं, हम अपने असली कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में नहीं हैं और इसीलिए बदलाव होते रहते हैं। आपका पोजीशन चेंज होता रहता है, आपकी शरीर चेंज होता रहता है और आपको शरीर छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि इसमें विकार आते हैं, इसमें बुढ़ापा आता है और इसमें मृत्यु आती है। तो ये जो शरीर है ये केवल एक तीन धातु है, कफ, पित्त और वात, इसका ये एक बैग है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। इसमें खून है, इसमें बहुत सारी बदबूदार चीज़ें हैं, हड्डियां हैं। तो ये एक थैली की तरह है जिसमें ये सारी चीज़ें भरी हुई है और फिर भी हमको अपने शरीर से इतना लगाव होता है और हम सोचते हैं कि सब कुछ मुझे अपने शरीर के लिए करना है, जबकि ये शरीर ही हमारे दुखों का कारण है। और जब तक हम शरीर से विरक्त नहीं हो जाते हैं तब तक हमको साक्षात्कार नहीं होगा। तो इसीलिए शास्त्रों में जो यज्ञ बताए गए हैं, तो अर्जुन ने यहाँ पे भगवान से ये भी क्वेश्चन पूछा है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यज्ञ के देवता कौन है और यज्ञ किसके लिए करना चाहिए ताकि हमें मुक्ति मिल जाए, इस शरीर की चेतना से, एक शारीरिक लेवल से हमको मुक्ति मिल जाए। तो शरीर के अंदर जो रहने वाले यज्ञ के देवता है वो भगवान है, भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कई जगह पे बोला है ईश्वर सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये 18 चैप्टर में आता है, श्लोक नंबर 61। भगवान कहते हैं कि मैं सभी के शरीर में ईश्वर के रूप में रहता हूँ, यज्ञ के स्वामी के रूप में रहता हूँ। तो भगवान हमारे एकदम निकट रहते हैं, हमारे हृदय के अंदर ही रहते हैं। और भगवान ने एक और श्लोक बोला है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विद एव चाहम। तो ये चैप्टर 15 में आता है, चैप्टर 15 का श्लोक नंबर 15 है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूँ और सबको मैं ज्ञान देता हूँ, सबकी विस्मृति का भी कारण मैं ही हूँ, सबको ज्ञान होने का कारण भी मैं ही हूँ और मैं ही सबका ईश्वर हूँ।
मैं ही सारे जीवों का परमेश्वर हूँ। तो भगवान ने गीता में कई जगह पे ये इस बात को रिपीट किया है। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि किसी भी बात को रिपीट करने का मतलब है उसको अच्छे से समझाना। तो जैसे एक श्लोक आता है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये 9वें अध्याय में भी आता है लास्ट में, और 18वें अध्याय में भी लास्ट में आता है। तो एक तरह से ये कंक्लूजन है, फाइनल ऑर्डर है भगवान का कि मेरे शरण में आओ, मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो, मेरी सेवा करो। ये फाइनल कंक्लूजन है भगवत गीता का। तो ये भी 2 बार रिपीट हुआ है गीता में, 9 चैप्टर में और 18 चैप्टर में। तो मतलब भगवान हमको इस तरह से भगवान एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि हमारे मन में कोई डाउट ना रहे और हमको क्लियर ज्ञान मिले, एक क्लियर कंक्लूजन मिले, एक निष्कर्ष, एक साफ निष्कर्ष मिले कि एक्चुअली जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे एक्चुअली करना क्या है। मुझे सेवा तो करनी है, कर्म तो करना है, बट किसके लिए करना है। अगर मैं भगवान के लिए नहीं करूँगा तो किसी और के लिए करना पड़ेगा। बट भगवान के अलावा अगर मैं किसी और के लिए कर्म करूँ या सेवा करूँ तो फिर मेरा जन्म मृत्यु और बुढ़ापा और जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कभी रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। तो अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे और हम लोग भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमारा जन्म मृत्यु चलता रहेगा बार बार, और बार बार ये प्रोसेस में हमको भटकना पड़ेगा और कभी भी हमको एक परमानेंट पोजीशन नहीं मिलेगी। तो परमानेंट पोजीशन के लिए हम सभी ट्राई कर रहे हैं, बट एक्चुअली कोई भी पोजीशन इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पोजीशन परमानेंट नहीं है। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते, गुरु की श्रीला प्रभुपाद की शरण में नहीं जाते और श्रीला प्रभुपाद जी के गाइडेंस के अनुसार कृष्णा भगवान की सेवा नहीं करते, तो फिर हमारा पोजीशन बार बार चेंज होता रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि गुरु को आइडेंटिफाई करना है और भगवान को आइडेंटिफाई करना। गुरु वो है जो भगवान से कनेक्ट करते हैं और भगवान की सेवा में हमको नियुक्त करते हैं, एंगेज करते हैं। और गुरु जो है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इटर्नल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब नित्य सेवक। जैसे भगवान का एक श्लोक यहाँ प्रभुपाद ने बताया है, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातन। मतलब सारे ही जीव भगवान के सनातन अंश, बट ये साक्षात्कार सारे जीवों को नहीं होता है। तो किसको होता है? वो करोड़ों में एक को ही होता है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है, यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो हालांकि सारे ही जीव भगवान के अंश है, पर ऐसे करोड़ों लाखों करोड़ों अंशों में से एक अंश को भगवान का अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है, और वो एक अंश जो है वो है श्रीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी एक कम्प्लीटली सेल्फ रियलाइज सोल है, एक नित्य सिद्ध भगवान के सेवक हैं, नित्य सेवक है भगवान के, जिनको भगवान ने यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में भेजा है एक मिशन देकर कि सभी को लिबरेट करना है और सभी अंशों को वापस मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले आना है। और इसी मिशन को लेकर प्रभुपाद जी यहाँ पे आए हैं 10,000 साल का टाइम लेकर। तो ये काम कोई इजी काम नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है। इतने सारी आत्माओं को सरेंडर कराने के लिए बहुत टाइम लगता है। प्रभुपाद कहते हैं एक एक आत्मा के ऊपर बहुत सारा एनर्जी और टाइम लगाना पड़ता है, उसको सरेंडर करवाने के लिए, उसको सेवा में लगाने के लिए और फिर सेवा में मेंटेन करके रखने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने तो ये कहा है कि अगर एक भी सोल अगर परमानेंटली भगवान को सरेंडर हो जाए तो फिर पूरे वर्ल्ड का उद्धार हो सकता है। क्योंकि अगर एक ने भी सरेंडर कर दिया और एक ने भी हमेशा के लिए भगवान की सेवा में एंगेज हो गया तो सारे जो सोल है दुनिया में धीरे धीरे करके सब उसको फॉलो करेंगे और सब इस माया से लिबरेट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमको कोशिश ये करनी है कि हम प्रभुपाद जी को फॉलो करें और उनको सरेंडर करें और उनके इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें, एक एक श्लोक को, एक एक लाइन को हम ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उनकी एक एक लाइन जो है वो टोटली सेल्फ रियलाइजेशन के बाद वाला उनका स्टेटमेंट। तो मतलब पहले प्रभुपाद जी को सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है कम्प्लीटली 100%, उसके बाद उन्होंने ये तात्पर्य लिखा है भगवद गीता का। तो इसका मतलब कि इसके जो एक एक स्टेटमेंट है वो परमानेंट ट्रूथ है, अल्टीमेट ट्रूथ। और
प्रभुपाद जी का एक एक स्टेटमेंट हमको पढ़ना है, उसको फॉलो करना है, क्योंकि प्रभुपाद जी वो एक सेल्फ रियलाइज सोल है जो हम सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और उस पर्पज़ के लिए वो यहाँ पे 10,000 साल तक रुके हुए हैं इसी मटेरियल वर्ल्ड में। तो प्रभुपाद जी ने एक लेटर में एक स्टेटमेंट बोला है कि स्पिरिचुअल मास्टर हैज़ टू वेट इन द मटेरियल वर्ल्ड अंटिल ऑल द डिसाइपल्स आर लिबरेटेड। मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु जो होता है उसको इसी दुनिया में रुकना पड़ता है जब तक सारे उनके शिष्य माया से मुक्त नहीं हो जाते। तो इसीलिए प्रभुपाद जी अभी भी रुके हुए हैं, क्योंकि अभी हम सब मुक्त नहीं हैं। ये तो बहुत क्लियर बात है। हम सब के अंदर बहुत सारे दोष है, बहुत सारे विकार हैं। तो हम सबको बचाने के लिए और हम सबको सुधारने के लिए और हम सबको वापस कृष्णा के पास ले जाने के लिए प्रभुपाद जी यहीं पर रुके हुए हैं, और हम सबको ले जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको प्रिपेयर करने की, ट्रेनिंग देने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ट्रेनिंग लेनी है प्रभुपाद से, और कोशिश करनी है कि हम जितना परफेक्ट हो सके उतना परफेक्ट बन जाए, और गीता को रेगुलरली पढ़ते रहें, और कम से कम 16 माला रोज़ करें, और भगवान को भोग लगाकर ही भोजन खाएं, और जितना हो सके इस ज्ञान को आगे स्प्रेड करने में हेल्प करें। तो इस तरह से प्रभुपाद जी का मिशन इजी हो जाएगा अगर हम उनकी सपोर्ट, अगर हम प्रभुपाद जी को सपोर्ट करेंगे, उनके मिशन को समझेंगे वो क्या करना चाहते हैं, और फिर हम उनकी हेल्प करेंगे। तो हो सकता है कि एक दिन ये मैसेज पूरे प्लैनेट पे सभी करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए, और फिर करोड़ों लोग उनके डिसाइपल बन जाए और सभी को माया से मुक्ति मिल जाए। ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें शिला प्रभुपाद जी की मदद करनी है, क्योंकि उनका मिशन बहुत बड़ा मिशन है, कोई इजी नहीं है। 10,000 साल का मिशन है, और इसमें हम जितना भी कर पाएंगे उनके लिए वो कम है। तो हमें तो बस ये सोचना है कि मुझे शिला प्रभुपाद जी की सेवा मिले और उनके लिए मैं कुछ करूं और करता रहूं, मतलब क्योंकि ये हज़ारों सालों तक ये चलने वाला है। तो फिर इसमें सेवा की कोई कमी नहीं है। आपके पास बहुत सारी सेवा है, और आपको बस सेवा करते रहना है और प्रभुपाद जी को फॉलो करते रहना है। तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरे धरती पे ये स्प्रेड हो जाएगा और सभी लोग इसको फॉलो करेंगे। तो ये इसका तात्पर्य है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन या डाउट अगर किसी को है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, कोई क्या क्वेश्चन है आपका? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। आपकी